السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ماحولیاتی مطالعہ EVS کلاس 5 سے، جو کہ یہ ہمارا پارٹ 6 ہے، آج ہم جماعت پنجم سے سبق فضائی کرہ ہوا 9th لیسن ہے، جو فضائی کرہ ہوا، اور 10th لیسن سورج اور سیارے۔ 9th لیسن فضائی کرہ ہوا اور 10th لیسن سورج اور سیارے، ان دو اسباق کے بہت ہی اہم نکات آپ کو یہاں پر سمجھائیں گے۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، آپ ضرور اسے مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ مختلف کمپٹیٹیو ایگزامز میں اچھے مارکس حاصل کر سکیں۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم ان دو اسباق سے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ پیش کریں گے تاکہ آپ اپنی جانچ کر سکیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، چلیے آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے زمین کی قوت کشش، مداری گردش اور محوری گردش کی وجہ سے ہوا مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے۔ زمین کی قوت کشش، مداری گردش اور محوری گردش کی وجہ سے ہوا مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے۔ زمین پر ہوا کا حجم بعض جگہ کم اور بعض جگہ زیادہ ہوتا ہے۔ زمین پر ہوا کا حجم بعض جگہ کم اور بعض جگہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہوا دباؤ ڈالتی ہے، ہوا وزن رکھتی ہے اور ہوا جگہ گھیرتی ہے۔ ہوا دباؤ ڈالتی ہے، ہوا وزن رکھتی ہے اور ہوا جگہ گھیرتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک غبارے میں ہوا بھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے اب ہم دیکھتے ہیں موسمی حالات۔ زمین کے اطراف ہوا ایک غلاف کی طرح گھیرے ہوئی ہے۔ زمین کے اطراف ہوا ایک غلاف کی طرح گھیرے ہوئی ہے۔ ہوا کے غلاف کو کرۂ ہوائی کہتے ہیں۔ ہوا کے غلاف کو کرۂ ہوائی ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ کسی بھی مقام پر گرمی، بادل، دھوپ، ہوا کی رطوبت اور دباؤ وغیرہ سے اس مقام کے موسمی حالات کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی مقام پر گرمی، بادل، دھوپ، ہوا کی رطوبت اور دباؤ وغیرہ سے اس مقام کے موسمی حالات کا پتہ چلتا ہے۔ موسمی حالات کی بنا پر ایک سال میں 3 موسم ہوتے ہیں۔ موسمی حالات کی بنا پر ایک سال میں 3 موسم ہوتے ہیں، وہ موسم سرما، موسم گرما اور موسم برسات۔ موسمی حالات کی بنا پر ایک سال میں 3 موسم ہوتے ہیں، موسم سرما، موسم گرما اور موسم برسات۔ سورج کے اطراف زمین کی گردش کی وجہ سے موسم بنتے ہیں۔ سورج کے اطراف زمین کی گردش کی وجہ سے موسم بنتے ہیں، جسے مداری گردش بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر موسم کے حالات کو درج کرنے کے لیے ذیل میں چند علامات اشارے دیے گئے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب میں دی گئی ہے تصویر۔ یہاں پر آسمان اگر ابر آلود ہو تو اس طرح سے بتایا جاتا ہے، اگر دھوپ ہو تو اس طرح سے، بارش ہو تو یہاں پر لائنز کی شکل میں بتایا جاتا ہے، ژالہ باری ہو تو اس طرح سے بتایا گیا ہے یہاں پر، اور ہوا مشرق سے مغرب کی سمت چلتی ہو تو یہاں پر تیر کے نشان سے بتایا گیا ہے۔ اس طرح یہ تمام چیزیں یہاں پر تصویر میں بتائی گئی ہے۔ چلیے آگے اب ہم دیکھتے ہیں موسم سرما کے بعد کوئل کی کوک سنائی دیتی ہے۔ موسم سرما کے بعد کوئل کی کوک سنائی دیتی ہے کیونکہ موسم گرما آتا ہے، اور ہے موسم گرما۔ ماہ اپریل، مئی اور جون میں شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ ماہ اپریل، مئی اور جون میں شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ موسم برسات یا بارش، جولائی اور اگست کے مہینوں میں بارش کثرت سے ہوتی ہے۔ جولائی اور اگست کے مہینوں میں بارش کثرت سے ہوتی ہے۔ ہوائی کرے کی پرتیں، ہوائی کرے کی پرتیں، آپ دیکھیں گے کہ ہوائی کرے کی کتنی پرتیں ہیں۔ ہمارے اطراف پائی جانے والی ہوا کو ہوائی کرہ کہتے ہیں۔ ہمارے اطراف پائی جانے والی ہوا کو ہوائی کرہ کہتے ہیں۔
हवा में कई गैसें, मिट्टी के ज़र्रात, धूल, आबी बुखारात पाए जाते हैं। ये सब आबो हवा ही हैं। हवा में कई गैसें, मिट्टी के ज़र्रात, धूल, आबी बुखारात पाए जाते हैं। ये सब आबो हवा ही हैं। जमीन के अतराफ जो हवा की परतें हैं इसे फिजाई कुर्रा कहते हैं। जमीन के अतराफ जो हवा की परतें हैं इसे फिजाई कुर्रा कहते हैं। यानी जमीन के अतराफ हवा गिलाफ की शक्ल में मौजूद है, इसे फिजाई कुर्रा कहते हैं। फिजाई कुर्रे को दर्जा हरारत में पाई जाने वाली तब्दीली की बुनियाद पर 5 परतों में तकसीम किया गया है। फिजाई कुर्रे को दर्जे हरारत में पाई जाने वाली तब्दीली की बुनियाद पर 5 परतों में तकसीम किया गया है। यानी फिजाई कुर्रे को 5 परतों में तकसीम किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक है ट्रापोस्फेयर, दूसरा है स्ट्राटोस्फेयर, और तीसरा है मीजोस्फेयर, और चौथा है थर्मोस्फेयर, और पांचवा है एग्जॉस्फेयर। ट्रापोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर, इस तरह से फिजाई कुर्रे को 5 परतों में तकसीम किया गया है। अब हम इसे तस्वीर के जरिए यहां पर देखेंगे। ये देखिए, यहां पर ये पहला है ट्रापोस्फेयर, और दूसरी परत है स्ट्राटोस्फेयर, और तीसरी परत है मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर में यहाँ पर इस तरह से तारे वगैरह बताया गया है। ये ट्रापोस्फेयर परत में हम लोग मौजूद हैं। इंसानी जिंदगी ट्रापोस्फेयर में गुजर रही है और हम यहाँ से ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं। ये है ट्रापोस्फेयर। चलिए अब हम ट्रापोस्फेयर के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ट्रापोस्फेयर जमीन की सतह से करीब पाई जाने वाली फिजाई परत ट्रापोस्फेयर कहलाती है। जमीन की सतह से करीब पाई जाने वाली फिजाई परत ट्रापोस्फेयर कहलाती है। हम ट्रापोस्फेयर में रहते हैं और इसमें मौजूद हवा को सांस के जरिए लेते हैं। हम तमाम लोग ट्रापोस्फेयर में रहते हैं और इसमें मौजूद हवा को सांस के जरिए लेते हैं। आबो हवा में पाई जाने वाली तमाम तब्दीलियां इसी परत में वाक़ होती है। आबो हवा में पाई जाने वाली तमाम तब्दीलियां इसी परत में वाक़ होती है। हवा का दबाव कम या ज्यादा या दर्जा हरारत में कमी या ज्यादती इसी ट्रापोस्फेयर में महसूस की जा सकती है। ट्रापोस्फेयर परत में हम जितना बुलंदी पर जाते हैं इतना ही दर्जा हरारत में कमी वाक़ होती है। ट्रापोस्फेयर परत में हम जितनी बुलंदी पर जाते हैं इतनी ही दर्जा हरारत में कमी वाक़ होती है। सूरज की हरारत को जमीन के तमाम हिस्से एकसा तौर पर हासिल नहीं कर सकते। खुतबैन के मुकाबले में खते इस्तवा पर सूरज की हरारत ज्यादा होती है। यानी खुतबैन शुमाली खुतुब और जुनूबी खुतुब पर सूरज की शुआएं कम गिरती है, जिसकी वजह से वहां पर दर्जा हरारत कम होता है, और खते इस्तवा पर ज्यादा दर्जा हरारत होता है। दर्जा हरारत का फर्क ही हवाओं के चलने और मौसमों में तब्दीली का सबब होता है। दर्जा हरारत का फर्क ही हवाओं के चलने और मौसमों में तब्दीली का सबब होता है। हवा आवाज पैदा करती है। अगर हम कोई बांसुरी वगैरह बजाते हैं तो हवा की तब्दीली की वजह से आवाज पैदा होती है, और हवा जगह घेरती है और हवा में तवन्नाई होती है। हवा आवाज पैदा करती है और हवा जगह घेरती है और हवा में तवन्नाई होती है। हवा की तवन्नाई की मदद से बड़े बड़े पहियों को घुमाकर बिजली तैयार की जाती है, जिसे वाइंड इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। हवा की तवन्नाई की मदद से बड़े बड़े पहियों को घुमाकर बिजली तैयार की जाती है, जिसे वाइंड इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। हवा का कोई रंग और मजा नहीं होता। हवा का कोई रंग और मजा नहीं होता। हवा में ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यानी हवा में मुख्तलिफ किस्म की गैसें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और ऑक्सीजन गैस इसके बाद, और फिर इससे कम कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन जानदारों को जिंदा रहने में मदद देती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन जानदारों को जिंदा रहने में मदद देती है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है।
पौधों को ग़िज़ा की तैयारी के लिए हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। पौधों को ग़िज़ा की तैयारी के लिए हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और पौधे इस अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। पौधे इस अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, यानी शुआई तरकीब के अमल के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करके अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। ऑक्सीजन गैस पानी में हल होती है। ऑक्सीजन गैस पानी में हल होती है। सूरज और सैयारे, ये हमारा 10वां सबक है, सूरज और सैयारे। सूरज एक सितारा है, दूसरे सितारे की बनिस्बत जमीन से करीब है। सूरज एक सितारा है और दूसरे सितारों की बनिस्बत जमीन से करीब है, जिसकी वजह से सूरज हमको बड़ा नजर आता है। हमारे शमसी निजाम में वाहिद सूरज ही सितारा है। हमारे शमसी निजाम में वाहिद सूरज ही सितारा है। हमारे शमसी निजाम में तवन्नाई का जरिया सूरज है। जुमला 8 सैयारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं, जिनमें जमीन भी एक सैयारा है। यानी जुमला 8 सैयारे मौजूद हैं और जिनमें जमीन भी एक सैयारा है और ये तमाम सूरज के अतराफ गर्दिश करते रहते हैं। सूरज 8 सैयारे, अब हम देखेंगे कि वो 8 सैयारे सूरज के अतराफ किस तरह मौजूद हैं। यहाँ एक तस्वीर के जरिए बताया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक निजाम शमसी को बताया गया है। ये सूरज है जो कि यहाँ ये सूरज है और ये निजाम शमसी के मरकज पर है। ये अतारुद, दूसरे नंबर पर है जोहरा और तीसरे नंबर पर है जमीन, मरीख, मुश्तरी, जुहल, यूरानस, निपचून। सूरज के अतराफ इस तरह 8 सैयारे मौजूद हैं। अतारुद, जोहरा, जमीन, मरीख, मुश्तरी, जुहल, यूरानस और निपचून। निपचून सबसे आखिर में वाक़ हैं। आगे अब हम देखेंगे सूरज के अतराफ मौजूद अजसाम को सैयारे कहते हैं। सूरज के अतराफ मौजूद अजसाम को सैयारे कहते हैं। सूरज और इसके अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों को निजाम शमसी कहते हैं। सूरज और इसके अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों को निजाम शमसी कहते हैं। ये 8 सैयारे अपने महवर पर घूमते हुए सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं और इस रास्ते को मदार कहा जाता है। यानी सूरज के अतराफ सैयारे जो गर्दिश करते हैं उस रास्ते को मदार कहा जाता है और जुमला 8 सैयारे हैं। पहले 9 सैयारे शुमार किए जाते थे, लेकिन साइंसदानों ने प्लूटो को सैयारा तस्वुर नहीं किया। पहले 9 सैयारे शुमार किए जाते थे, लेकिन प्लूटो को सैयारा तस्वुर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लूटो भी एक सैयारा था, लेकिन अब साइंसदान इसे सैयारा तस्वुर नहीं कर रहे हैं। जमीन की शक्ल तकरीबन कुर्रा है। जमीन की शक्ल तकरीबन कुर्रा है। जमीन का अपने महवर पर गर्दिश करना महवरी गर्दिश कहलाता है। जमीन का अपने महवर पर गर्दिश करना महवरी गर्दिश कहलाता है। इसी की वजह से दिन और रात बनते हैं। जमीन का महवरी गर्दिश के लिए दरकार वक्त 24 घंटे होता है। जमीन का महवरी गर्दिश के लिए दरकार वक्त 24 घंटे होता है, यानी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। चांद और जमीन के ताल्लुक से अब हम देखेंगे। इस तरह से एक तस्वीर है और ये है जमीन और चांद इसके अतराफ यहाँ पर गर्दिश कर रहा है। जमीन के अतराफ चांद गर्दिश कर रहा है। ये है जमीन और ये चांद जमीन के अतराफ इस तरह से गर्दिश कर रहा है, जो कि चांद जमीन का एक कुदरती सैयारचा है। चांद जमीन का कुदरती सैयारचा है। चांद जमीन का कुदरती सैयारचा है। खला में किसी सैयारे के गिर्द घूमने वाले फल्की जिस्म को ज़ेली सैयारा कहते हैं। खला में किसी सैयारे के गिर्द घूमने वाले फल्की जिस्म को ज़ेली सैयारा कहते हैं। जमीन के अतराफ चांद को एक चक्कर लगाने के लिए तकरीबन 28 दिन का वक्त दरकार होता है। जमीन के अतराफ चांद को एक चक्कर लगाने के लिए तकरीबन 28 दिन का वक्त दरकार होता है। यानी जमीन के अतराफ चांद को एक चक्कर पूरा करने के लिए 28 दिन का वक्त
लगता है। चांद सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है क्योंकि चांद खुद से रोशन नहीं है बल्कि वो सूरज की रोशनी की वजह से मुनक्किस होकर चमकता है। 14वीं रात को ही मुकम्मिल चांद नजर आता है। 14वीं रात को ही मुकम्मिल चांद नजर आता है। चांद की शक्लें बनने के लिए 28 दिन लगते हैं। दूसरे सैयारे भी खुद के अतराफ घूमते हैं। जिस तरह से चांद जमीन के अतराफ घूमता है और दूसरे सैयारे भी खुद के अतराफ घूमते रहते हैं। चांद की शक्लें बनने के लिए 28 दिन लगते हैं। अब हम देखेंगे कि चांद की शक्लें किस तरह बनती है। यानी चांद जब सूरज के सामने आते रहता है तो इसकी शक्लें बदलती रहती हैं। चांद के मुकामात पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी में तब्दीली की वजह से हमको चांद की शक्ल में फर्क नजर आता है। चांद के मुकाम पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी में तब्दीली की वजह से हमको चांद की शक्ल में फर्क नजर आता है। देखिए ये तमाम अशकाल यहाँ पर इस तरह से सूरज की रोशनी अगर चांद पर यहाँ पर कम पड़ रही है तो इस तरह से, फिर इस तरह से, ये तमाम चांद की बदलती हुई शक्लों की तस्वीरें हैं। और 14वीं का चांद हमको मुकम्मिल तौर पर नजर आता है। तो अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर मुकम्मिल अहम नुकात इन दो असबाब के कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम आपके टेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए अजीज तलबा और तालिबात, अब हम टेस्ट की जानिब चलते हैं। अब तक आपने जो कुछ इस वीडियो से सीखा है, अब यहाँ पर हम चंद सवालात पेश करेंगे ताकि आप अपनी जांच खुद कर सकें। सबसे पहला सवाल इस तरह है कि सूरज से जमीन का मुकाम है। सूरज से जमीन का कौन सा मुकाम है? सूरज से जमीन का मुकाम है, यानी मतलब कौन सा मुकाम है? तो उसका जवाब है तीसरा। सूरज से जमीन का मुकाम है तीसरा, क्योंकि अतारुद जोहरा और तीसरे नंबर पर है जमीन। दूसरा सवाल है जुमला सैयारे कितने हैं? जुमला सैयारे कितने हैं? और इसका जवाब है जुमला 8 सैयारे हैं। जुमला 8 सैयारे हैं, क्योंकि प्लूटो को निकाल दिया गया है जो कि 9वां सैयारा था, लेकिन अब जुमला 8 सैयारे हैं। चलिए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। फिजाई कुर्रे को कितनी परतों में तकसीम किया गया? फिजाई कुर्रे को कितनी परतों में तकसीम किया गया? और इसका जवाब है 5 परतों में तकसीम किया गया। फिजाई कुर्रे को 5 परतों में तकसीम किया गया। चलिए चौथे सवाल की जानिब चलते हैं। किस फिजाई परत में इंसानी जिंदगी और ऑक्सीजन मौजूद है? किस फिजाई परत में इंसानी जिंदगी और ऑक्सीजन मौजूद है? और इसका जवाब है ट्रापोस्फेयर। ट्रापोस्फेयर फिजाई परत में इंसानी जिंदगी और ऑक्सीजन मौजूद है। आखिरी सवाल आज की क्लास का। खला में किसी सैयारे के गिर्द घूमने वाले फलकी अज्साम को कहा जाता है? खला में किसी सैयारे के गिर्द घूमने वाले फलकी जिस्म को कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ज़ेली सैयारा से कहा जाता है, ज़ेली सैयारा। तो इस तरह अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। और जरूर आप हमें कमेंट कर कर बताएं कि आपने कितने नशरात हासिल किए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।